Tell me if it is online now. Can you, like, whenever the video starts, please post this thing that somehow we are getting delayed. All right. All right. So I guess I'm live now. Thank you for joining again, and sorry, extremely sorry for the delay that we have had. There was a technical glitch that we were facing, and we were trying to fix it for past 15-20 minutes. Um, I don't want my viewers to wait anymore, and somehow we couldn't project it from the Zoom to here. So I guess I will be talking to you just like that without the slides today. And let me make it more creative for you. I can still see 7 people here, and without ado, I will start this session here. Let me just uh, get online from a different device so that I can at least see your comments, because I'm unable to see it here. I'm just using it for the very first time on your own. Thank you for bearing with me. Um, right, I still can't see me online, but I guess Prashant sir says that I am live now. Okay, so I believe him, and we can go ahead with the session. So, welcome back to this session. Formally, I'm taking the day 2 of parenting session here. Yesterday, we have discussed about the parenting, different parenting styles, and different communication patterns that you can opt for making your bond stronger and making the communication better with your children. Today, we will be taking all the behavioral scenarios, and we will be covering why kids do what they do, and how to analyze their behavior, and how to manage their problem behaviors. So, and a little bit about the screen time, which is an ongoing issue, and every parent some or the other time deals with it, and it is a very big problem. They don't know what comes in the category of internet addiction, how much is too much. So these are some of the questions that parents have. So let me begin. So why kids do what they do? The question to this is, कभी वो चिड़चिड़ करते हैं, या कभी वो मॉल में आप कभी जाते हैं और बच्चे कोई चॉकलेट या कोई खिलौना देखते हैं, एंड देन यू फील कि उन्हें वो चाहिए है, और जब आप उनसे बार्गेन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, तो दे विल समवेयर पुट देयर फुट डाउन। वो बहुत ज़ोर से रोएंगे, या वो चिड़चिड़ करते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते हैं, एंड वहीं पे ही टैंट्रम शुरू हो जाता है। या कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि स्कूल से कोई कंप्लेंट आई कि बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, या किसी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है दूसरे बच्चे के साथ में, और मे बी दे आर बुलिंग अदर किड्स विदाउट इवन नोइंग दैट दे आर बुलिंग अदर किड्स। और स्क्रीन टाइम इज अनदर थिंग दैट पेरेंट्स डील ऑन एंड ऑफ ऑन अ डेली बेसिस। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका उत्तर आपको इस चीज़ में मिलेगा कि जब आप अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं बच्चे की, तो कई बार आप बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये नहीं करना। सबसे पहले हम बच्चे को जब चोट लग सकती है उसे कोई शार्प चीज़ से, तब हम उसे सिखाते हैं कि ये नहीं करना, ये कर लेना। ये मत करो, डोंट डू दिस। जैसे ही वो कुछ करता है और आपको उसकी सेफ्टी सुनिश्चित करनी होती है, देन यू विल गो अहेड एंड टेल देम दैट डोंट डू दिस। एंड इन द प्रोसेस आप शायद उसे ये बताना भूल जाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। सो व्हेन यू फॉरगेट टू टेल द किड व्हाट टू डू, तो फिर दे विल फिगर आउट कि उन्हें क्या करना है। वो उसे किसी को छेड़ना है, कोई चीज़ तोड़ना है, कहीं से कूदना है,
कोई चीजें अस्त व्यस्त करनी है, तो दे विल फिगर आउट ऑन देयर ओन, एंड you will get another reason to feel annoyed. But instead of being patient enough to understand, maybe आप उन्हीं पे yell करेंगे कि this is not an appropriate behavior. तो कई बार बच्चे जो अपने आसपास से सीखते हैं और उन्हें ऑप्शन समझ नहीं आते हैं, एंड देन दे स्टार्ट डूइंग वट एवर फील्स अप्रोप्रिएट टू देम। उनके पास अगर कोई फीडबैक नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, या किसी ने बताया नहीं है कि ये चीज करने से इसके रिजल्ट ये होते हैं, तो वो खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। और जब वो ये करते हैं तो वो हर वो चीज कर रहे होते हैं जो आप उन्हें बताना चाहते हैं कि ये नहीं करना है बेटा। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट जो मैंने कल भी बोली थी, एक मैम का क्वेश्चन था, कामिनी पारिक जी का कल क्वेश्चन था कि बच्चे क्यों करते हैं चीजें जो वो करते हैं। तो बच्चे बहुत स्मार्ट कॉपी कैट्स होते हैं। वो एटलीस्ट 4 या 5 साल की उम्र तक अपने आसपास अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स या लर्न्ड बिहेवियर्स वो सीखते हैं अपने आसपास। कोई बच्चा सीख के नहीं आता है कि टैंट्रम कैसे करना है, ये कोई इनेट एबिलिटी नहीं है, बट वो उनके आसपास जो चीजें देखते हैं और वो वैसा ही करने लग जाते हैं। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, विच एवर थिंग्स वर्क फॉर देम दे स्टार्ट डूइंग दैट इवेंचुअली। तो वो स्मार्ट कॉपी कैट्स होते हैं। जैसे हम बहुत कॉमनली ये देखते हैं कि एक गर्ल बहुत नेचुरली उसकी मदर को कॉपी करती है अबाउट हर हैबिट्स, अबाउट हर इमोशंस, अबाउट हाउ शी कंडक्ट्स हर सेल्फ, अबाउट शी हाउ शी ड्रेसेस हर सेल्फ। वो बहुत अच्छे से कन्वीनियंटली कॉपी करती है। सेम गोज फॉर बॉय, वो अपने फादर को बहुत अच्छे से कॉपी करता है। सेम गोज विद देयर इमोशन, सेम गोज विद देयर बिहेवियर ऑल्सो। वो सिर्फ आपका ड्रेसिंग सेंस कॉपी नहीं कर रहे होते हैं, वो ये भी कॉपी करते हैं कि जब आप गुस्सा करते हो तब आप कैसे गुस्सा करते हो। वो ये भी कॉपी करते हैं कि जब आप किसी मोमेंट पे चिड़चिड़ करते हो बट आप उसे कैसे संभाल लेते हो, सिचुएशन को कैसे सामने वाले को संभाल लेते हो, वो भी कॉपी कर रहे होते हैं। और वो बहुत कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं। आप अपने बच्चे को शायद हर चीज बोल के बताना चाहते हो, आप एक गाइडलाइन देना चाहते हो, आप समझाना चाहते हो ये करना और ये नहीं करना। तो लेट मी टेल यू, शायद आपका बच्चा आपको सुने ना एक बार, बट वो आपको देख जरूर रहा है। मतलब एक तरफ आपने उसको समझाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हो और आपने फोन पे बोला हाँ हाँ मैं बस मोड़ पे ही पहुंचा हूँ। तो बच्चा आपको ऑब्जर्व करके सीखता है ये चीजें, क्योंकि आपने उसे गाइडलाइन क्या दी थी कि झूठ नहीं बोलना है। बट ऑन एन एवरेज हम सब दिन में बहुत सारे झूठ बोलते हैं और वो बच्चे भी सीखते हैं। और एट द सेम टाइम वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि व्हाट वर्क्स इन माय सिचुएशन विद दिस पर्सन। जैसे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चे का मन है कुछ चीज खाने का, उसे कोई फास्ट फूड खाना है या उसे मैगी या बर्गर या ऐसा कुछ कोई चीज खानी है। तो एक बार शायद मम्मी के तरफ अप्रोच किया, मम्मी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं अभी कल बना था आज नहीं बनेगा। वो किसी और जो घर का दूसरा मेंबर है जो बना सकता है वो उसके पास जाएगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा। उनके साथ भी काम नहीं किया तो वो तीसरे पर्सन के पास जाएगा। वो पर्सन चेंज करते हैं, प्लस वो सिचुएशंस देखते हैं कि अच्छा मम्मी जब अकेले होती है तब स्ट्रिक्टली ही डील करती है, बट जब घर में मेहमान आते हैं और हमें चॉकलेट चाहिए होती है, यूजुअली हमें 2 खाने के लिए मिलती है दिन में, बट मेहमान आए हैं और दूसरे बच्चे भी आए हैं, तो मे बी अगर हम थोड़ा सा रोएंगे गाएंगे या हम जिद करेंगे तो हमें 2 की जगह 4 मिल जाएगी। तो दे नो, दे एक्सपेरिमेंट, वो हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं एंड दे टेस्ट देयर थ्योरीज और वो उसे एग्जीक्यूट भी करना जानते हैं। सो दे आर स्मार्ट कॉपी कैट्स। तो अकॉर्डिंगली आपके जो बिहेवियर्स हैं वो सारी चीजें वो कॉपी कर रहे हैं, और एक सर्टेन एज के बाद वो आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो उन सबके बिहेवियर्स भी कॉपी कर रहे हैं। एक सेविंग ग्रेस ये होती है, जब हम पेरेंटिंग के नजरिए से ये चीज देखते हैं तो एक सेविंग ग्रेस ये होती है कि ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड बिहेवियर्स। कोई भी बिहेवियर बच्चा सीख के नहीं आता है, इट इज नॉट इनेटली प्रेजेंट। जैसे कुछ इंस्टिंक्ट्स होती हैं हमारी,
भूख लगना, प्यास लगना, बॉवल मूवमेंट्स, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। बट जो बिहेवियर होता है, जिसको हम लर्न बिहेवियर बोलते हैं, वो सीखते हैं बच्चे। तो जो चीज़ सीखते हैं उसे हम अनलर्न भी कर सकते हैं, उसे हम भुला भी सकते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि किड्स ईट कामली सिटिंग एट वन प्लेस व्हेन देयर आईज आर ग्लूड टू स्क्रीन। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है और वो एक जगह बैठ के खाना नहीं खाता है, तो जस्ट बिकॉज उसमें एफर्ट थोड़ा कम लगता है, वो अपने मोबाइल के स्क्रीन्स ऑन कर देते हैं और उसमें यूट्यूब और ऐसा कुछ चला देते हैं, और वो उसको राइम्स को देखते देखते बच्चा खाना खाता है। तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट क्लियर कि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, लाइफ इतनी बिजी है, आपको बहुत सारे और भी कमिटमेंट्स पूरे करने हैं। बट 5 साल से पहले अगर आप बच्चे को स्क्रीन देते हो एंड एट अ लेटर एज आप उसे ये बोलते हो कि तुम तो दिन भर ही मोबाइल में बैठे हुए हो, तो इंट्रोड्यूस भी तो हमने ही किया था। तो इंगेजमेंट बच्चे के साथ ज़रूरी होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली उनके साथ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। आई कैन रिलेट विद इट। तो धीरे धीरे अगर आप हैबिट डालना चाहें तो हैबिट बनती जाती है। अगर आप एक फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे इफ यू टेल कि ठीक है यहाँ बैठ के खाना है, अदरवाइज ममा इज नॉट रनिंग अराउंड यू या फादर इज नॉट रनिंग अराउंड यू, तो इवेंचुअली वो ये रियलाइज करते हैं कि यस अभी यहाँ बैठ के खाना है। आपके मन में आपको लगेगा कि उसका पेट नहीं भर रहा है तो उसे बैठा के खिला दो, आपका बहुत ऐसा इच्छा करेगी, मन करेगा। तो तब भी अगर ऐसा हो तो एटलीस्ट कन्वे दैट मैसेज टू देम कि खाना बैठ के खाते हैं। और जब आप फैमिली टाइम पे भी खाना बैठ के खाते हैं तो मेक श्योर कि आप सब लोग साथ में बैठ के खा रहे हो, तो उनको वो चीज कॉपी करने में बहुत मजा आता है कि हाँ सब लोग साथ में बैठे हैं, टेबल चेयर पे बैठे हैं, चम्मच से खा रहे हैं, हाथ से खा रहे हैं, जैसे भी आप खा रहे हो, उन्हें वो सब कॉपी करने में बहुत मजा आता है। तो दैट विल नेचुरली बी इनकलकेटेड इन योर किड्स अगर आप एक बार वो डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू करते हो तो। बट अगर ऑलरेडी एक हैबिट बन चुकी है तो उसे अनलर्न कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। तो बिहेवियरल मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज एनालाइजिंग द चाइल्ड्स बिहेवियर। जब बच्चे का बिहेवियर हम एनालाइज करते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में ABC बोलते हैं, ABC ऑफ बिहेवियर। तो एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एंटीसीडेंट इज समथिंग विच हैज हैपेंड बिफोर द बिहेवियर। बिहेवियर जो प्रॉब्लम बिहेवियर जिससे आप डील कर रहे हैं वो। और C मीन्स द कॉन्सिक्वेंसेस कि उस बिहेवियर के बाद क्या हुआ, ये एनालिसिस में आता है। सो से फॉर एग्जाम्पल बच्चा बहुत चिड़चिड़ करता है या वो कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत जिद कर रहा है, तो आप एनालाइज करो फर्स्ट कि ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो बहुत जिद करता है या वो बात नहीं मानता है। और उसके पहले क्या होता है यूजुअली, क्या उसकी कोई ऐसी डिमांड होती है जो वाजिब है या वाजिब नहीं है, दैट इज रियली अप टू योर जजमेंट उसकी एज के अकॉर्डिंग। उसके पहले क्या हुआ है, क्या उसने ऐसे व्यक्ति के सामने मांगा था जहां वो पॉसिबल नहीं था, या ऐसी सिचुएशन में मांगा था जहां वो पॉसिबल नहीं था, और बच्चे थे वहां उनके सामने उसने मांगा था, क्या सिचुएशन थी उसके पहले, उसे क्या नीड थी। तो वो एक एंटीसीडेंट सिचुएशन हो गई कि घर में बर्थडे पार्टी थी और उसको उसी टाइम पे 4 चॉकलेट्स खानी थी, और वो ऑलरेडी 4 से ज्यादा चॉकलेट खा चुका था और उसके दांत में कीड़ा लगा हुआ था, दैट इज अ सिचुएशन। और बिहेवियर ये है कि अगर आपने मना किया और आपने उसे समझाया कि चॉकलेट सारी आपके ही लिए है, फ्रिज में ही रखी है और कंटेनर में ही रखी है, आपके लिए कोई और नहीं खाने वाला है, बट डिस्पाइट दैट आपको एक एंग्री बिहेवियर देखने को मिला, एक टैंट्रम देखने को मिला कि बच्चे उन्होंने झगड़ा मम्मी पापा से, वो जमीन पे लेट गए और हाथ पैर पटकने लग गए, ऐसा भी होता है। तो ये बिहेवियर आपको देखने को मिला, और इस बिहेवियर के बाद आपने क्या किया, उस बिहेवियर को रिवॉर्ड किया या उस बिहेवियर को बार्गेन किया, क्या किया आपने, अल्टीमेटली क्या हुआ उस सिचुएशन में कि क्या बच्चे को और चॉकलेट खाने को मिली, क्या उसे डांट पड़ी और उसे चॉकलेट नहीं खाने के लिए मिली, या
उसके साथ में बार्गेन करके ये डिसाइड हुआ, एक डील हुई कि अभी आपने इतनी खाली है, तो दैट मीन्स कि यू कैन ईट समथिंग एल्स बट नॉट अ चॉकलेट, विद द प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू ब्रश योर टीथ एवरी डे ट्वाइस। तो उसकी उस प्रॉब्लम बिहेवियर के बाद कॉन्सिक्वेंस क्या होता है ये डिसाइड करता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। तो बिहेवियरल मैनेजमेंट बाद में आता है, बट पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये बिहेवियर आ कहाँ से रहा है, उसने ये लर्न कैसे किया है। तो जब आप एबीसी एनालिसिस करते हो एक पर्टिकुलर बिहेवियर के पहले क्या सिचुएशन थी, बिहेवियर क्या हुआ और उस बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, बच्चे के नजरिए से, आपके नजरिए से नहीं, बच्चे के नजरिए से क्या कॉन्सिक्वेंस रहा, इसे हम एबीसी एनालिसिस बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी सिचुएशन देख रहे हो, जैसे बच्चा रो रहा है, तो आप कारण ढूंढो उसके पीछे, क्या भूख लग रही है या उसने जिद की है इसीलिए वो हो रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस उसे हर बार क्या मिल रहा है, वो कॉन्सिक्वेंस उसके बिहेवियर को इन्हांस कर रहा है या अनलर्न करा रहा है वो बिहेवियर, उसे वो पनिशमेंट के फॉर्म में मिल रहा है या वो अचीवमेंट या अवार्ड के फॉर्म में मिल रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक रियल टाइम एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट माई व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। जो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लेट्स डू एन एनालिसिस ऑफ पुलिस कैच। तो लॉकडाउन में अभी तो काफ़ी चीज़ें ओपन हैं, बट इसके पहले जब चीज़ें थोड़ी स्ट्रिक्ट थी और आप बाहर जाते थे और पुलिस आपको पकड़ लेती थी, तो लेट्स एनालाइज दिस सिचुएशन कि एक दिन आप घर में बैठे हो और आपने सोचा कि मुझे बहुत दिन से मैं घर में बैठा हूँ, पिंजरे में बंद जैसा फील कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं गाड़ी लेके बाहर घूम के आते हैं, गाड़ी का जो बैटरी है वो भी चार्ज हो जाएगा, हम फ्रेंड से भी मिल लेंगे, लेट मी गो आउट एंड सी की व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आपने ये डिसाइड किया, आप एक पर्टिकुलर स्क्वायर तक पहुंचे, क्रॉस रोड्स पे पहुंचे और वहां पे पुलिस खड़ी थी, बट पुलिस ने आपको कुछ नहीं बोला, आप वहां से निकल गए। तो ये जो पूरी सिचुएशन हुई, आपका बिहेवियर था कि आप वहां पहुंचे, वहां से ड्राइव करके निकल गए, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि पुलिस ने आपको नहीं रोका। तो इससे आप क्या इन्फ्रेंस निकालते हो कि पुलिस खड़ी है मगर वो कुछ बोल नहीं रही है, सो इट्स लाइक ओके, इट्स ओके टू मूव अराउंड। और अगर इसी सिचुएशन में आपको दो डंडे पड़ जाते या कोई चालान कट जाता या पुलिस आपको रोक लेती, बोलती, डांटती, या आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, तो व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन? क्या आप उस सिचुएशन में होते कि आप दोबारा ये रिपीट करोगे या आप नहीं रिपीट करोगे? तो उसका कॉन्सिक्वेंस अगर अच्छा है तो इट इज मोर लाइकली कि आप फिर से बाहर निकलोगे, अगर उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं है तो इट इज लेस लाइकली कि आप बाहर निकलोगे। यू विल अवॉइड दैट कि नहीं, पिछली बार एक अवर्सिव एक्सपीरियंस था मेरे पास और अब मैं दोबारा ऐसे नहीं निकलना चाहता हूँ, तो लेट मी बी इन्फॉर्म्ड कि क्या सिचुएशन है, कितने से कितने बजे तक निकल सकते हैं, एंड देन लेट मी गो। सेम हेलमेट के साथ में आप चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं कि अगर आपको, आप हेलमेट पहन के नहीं निकले हैं और पुलिस ने आपको नहीं पकड़ा, तो ये बिहेवियर रीइंफोर्स होता है कि हेलमेट पहनने की शायद ज़रूरत नहीं है। मगर आप हेलमेट पहन के निकले और पुलिस ने आपको नहीं पकड़ा, अगेन यही बिहेवियर रीइंफोर्स होता है कि पुलिस है बट वो कुछ करती नहीं है। अगली बार जब आपकी चालान कट गया, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं था या आपने हेलमेट नहीं पहना था, आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन से होके गुजरना पड़ा, आपके आगे के कमिटमेंट्स सफर किए उसके वजह से, तो एक अवर्सिव स्टिम्युलस डेवलप हो जाता है कि ये दोबारा नहीं करना है। तो अगर उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं है तो इट विल बी समथिंग दैट यू वुड बी एबल टू डू अगेन, आपकी इच्छा भी नहीं होगी और आप प्लान भी नहीं करोगे उसे दोबारा करने के लिए। तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर गुड बिहेवियर है, गुड आउटकम है, तो वो बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा, अगर बैड आउटकम है तो वो बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सेम बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है कि आप उनका जो भी बिहेवियर चेंज करना चाहते हो, तो अगर आप उस बिहेवियर को इनकरेज करते हो, उस डिजायरेबल बिहेवियर को आप उसे रिवॉर्ड करते हो, उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा बनाते हो इन वेरियस फॉर्म्स, तो वो बिहेवियर इट इज हाईली लाइकली कि वो फिर से रिपीट होगा, बच्चा नया बिहेवियर डेवलप करेगा और उसे पता होगा डिफरेंस कि कौन सा बिहेवियर अच्छा है और कौन सा बिहेवियर अच्छा नहीं है।
अगर आप किसी अनवांटेड बिहेवियर को या किसी प्रॉब्लम बिहेवियर को आप चेंज करना चाहते हो, तो आप उसे डिस्करेज करो, आप उसे रिवॉर्डिंग सिचुएशन में मत ले जाओ। जस्ट मेक श्योर कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस हो वो उतना रिवॉर्डिंग ना हो, एंड दैट सिचुएशन विल ग्रेजुअली फेड अवे। मैं इसे और थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगी। आप पनिश करते हो किसी सिचुएशन में, तो दैट मीन्स कि वो बिहेवियर दोबारा नहीं होगा। जब मैं पनिश वर्ड पे आती हूँ, तो जो फर्स्ट इंस्टेंस जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आता है पनिश करने का, इज लाइक एक चाटा लगा दो, एक चपत लगा दो, एंड किड्स विल बी फाइन। तो हम बहुत बड़े बच्चों के साथ भी शायद ये करते हैं, छोटे बच्चों के साथ तो वी फील इट कि ये हमारा हक है कि बीइंग दिस इज अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग, कि बच्चे को अगर आपने समझा दिया है, वो नहीं समझ रहा है और आपने उसको एक थप्पड़ मारा है, तो मे बी अब ये कंफर्म हो गया, ये डील हो गई है कि अब ये वाला बिहेवियर दोबारा नहीं रिपीट करना है, और बच्चा अपना लेसन ले लेता है। बट लेट मी टेल यू, पनिशमेंट इज नॉट द बेस्टेस्ट ऑफ चॉइस दैट यू मेक। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल, कि मान लीजिए कि घर में दो बच्चे हैं, एक लड़की है जो 4 इयर्स की है, और एक छोटा बच्चा है जो 2 इयर्स का है। और क्योंकि बच्चे दोनों छोटे हैं, 5 इयर्स से छोटे हैं, और वो दोनों झगड़ रहे हैं, और मम्मी कुछ इंगेजमेंट में है, वो कुछ काम कर रही है, या इफ शी इज बिजी इन हर हाउस होल्ड वर्क और ऑफिस का कोई वर्क है, तो अगर झगड़े की आवाज आती है, एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, तो मदर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है, एंड या जो भी एल्डर वहाँ पे प्रेजेंट है, मदर फादर एनीबॉडी, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड दे विल सी कि झगड़ा ना हो। तो वो शायद पहली बार में गुस्सा करेंगे, वो पहली बार में जाएंगे, बोलेंगे क्या हो रहा है, अभी गुस्सा, वो थोड़ा काम तरीके से आप शायद डील करो कि बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, चलो अलग अलग हो जाओ, अपना अपना खेलो, अपने अपने टॉय से खेलो, आपने आपका फर्ज उस टाइम पे पूरा कर दिया। सेकेंड टाइम फिर से आवाज आती है, आप फिर से जाते हो, उस टाइम पे शायद आपकी आवाज थोड़ी और ऊंची होती है, आप थोड़ा और जोर से डांटते हो, थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाता है, 4-5 मिनट बाद वो दोबारा वही चीज करते हैं, एंड समवेयर यू फील कि अभी पानी जो है वो सर से ऊपर हो रहा है, इनको बार बार समझा रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं, एंड समवेयर आपका पेशेंस आप खो देते हो, एंड यू ऑप्ट फॉर पनिशिंग देम इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल पनिशमेंट। तो जब आप ये करते हो, तो आपके नजरिए से आप डिसिप्लिन कर रहे हो बच्चे को, आपको ऐसा लगता है कि आपने डिसिप्लिन कर दिया, आपने चार्टर लगाया, एंड प्रोबेबली आपको उसके रिजल्ट्स दिखते हैं कि दोनों बच्चे अब अलग अलग हो जाते हैं, घर में इमीडिएट शांति आ जाती है। बट बच्चे के नजरिए से ये चीज देखिए, उसे क्या समझ में आता है कि जब मम्मी दूर से चिल्लाती है तो इट इज नॉट इफेक्टिव, पापा ने आके थोड़े जोर से डांट दिया, इट इज नॉट इफेक्टिव, पास आके गुस्सा कर दिया, थोड़ी देर खड़े रहे, देखते रहे, घूरते रहे, इट इज नॉट इफेक्टिव। बट जब चाटा पड़ जाता है ना, तो इट इज वेरी इफेक्टिव। तो उन्हें क्या पता है, जब किसी भी चीज से बात नहीं बनती है, तो किससे बात बनती है, एक चपत लगाने से। तो अगली बार जब बेटी जो 4 इयर्स की है, अगली बार जब उसे छोटे बच्चे के साथ में बिहेव करना होगा या उसे शांत करना होगा, वो फेल्ड अटेम्प्ट ट्राई ही नहीं करेगी, वो वही अटेम्प्ट ट्राई करेगी जो सक्सेसफुल होगा। उसके नजरिए से सोचिए, उसने तो यही सीखा कि बाकी चीजें काम ही नहीं करती है, घूरने से या आवाज ऊंची करने से, इट डजंट वर्क दैट वे, लेट मी जस्ट स्लैप माई लिटिल ब्रदर एंड ही विल बी ऑल राइट, वो अच्छे से बिहेव करना सीख जाएगा। तो इसीलिए भी पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल पनिशमेंट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इन द प्रोसेस आप बच्चे को अग्रेशन सिखा रहे होते हो। अभी तो वो छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और आप शायद उस स्टेज में होंगे जहाँ पे वो आपको पनिश कर सकता है। तो ये चीज हम उसे नहीं सिखाना चाहते हैं। ये एज ए पेरेंट, एज अ सोसाइटी, हम अपने बच्चे को अग्रेशन नहीं सिखाना चाहते हैं। तो पनिशिंग इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल पनिशमेंट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरे तरीके के जो बिहेवियर्स होते हैं, जहाँ पे आप पनिश करना चाहते हो, तो मे बी ऑप्ट फॉर अ पनिशमेंट जहाँ पे आप उनसे कोई चीज विदड्रॉ कर रहे हो विच इज वेरी डियर टू देम। जैसे उन्हें टीवी देखना पसंद है, या उन्हें कोई पर्टिकुलर गेम खेलना पसंद है, या उन्हें कोई एक पर्टिकुलर डेजर्ट खाना पसंद है,
या उनका कोई फेवरेट डिश है जो उस दिन बनने वाला है, विड्रॉ दैट थिंग फ्रॉम देम एंड दैट स्टिल ट्रीट इज ट्रीटेड एज अ पनिशमेंट। उनके लिए वो पनिशमेंट होता है कि क्योंकि मैंने ये चीज किया, मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया, इसलिए मेरी कुछ एक बहुत प्रिय चीज थी, समथिंग दैट वाज वेरी डियर टू मी वाज टेकन अवे फॉर अ वाइल इन द फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट। तो जब आप ये दोनों चीजें एस्टैब्लिश करते हो, देन द चिल्ड्रन विल इवेंचुअली लर्न कि एक बिहेवियर का दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और अगर कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं है दैट मीन्स इट इज नॉट टू बी रिपीटेड। तो कॉन्सिक्वेंस में अगर आप पनिशमेंट दे रहे हो, यू आर टेकिंग समथिंग डियर अवे फ्रॉम देम, यू आर स्टिल पनिशिंग देम। या आप थोड़ी देर के लिए, जैसे स्कूल में हमें पनिशमेंट्स मिलती थी कि क्लास के बाहर चले जाओ, या जहां आप बैठे हो वहीं के वहीं खड़े हो जाओ, तो आई गेस वो एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। वैसे हमने बहुत हंसी मजाक करके उसे निकाला था, बट उसे थोड़ा सा और अगर हम इंस्पेक्ट करें तो आई गेस यू विल रियलाइज कि वो बैठ के जो हा हा ही हु हो रही थी क्लास में, वो मजा वो बच्चा नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो खड़ा है या वो एक कॉर्नर में खड़ा है। तो द फन दैट दे आर मिसिंग इज समथिंग विच इज पनिशमेंट। वो मिस कर रहे हैं उस चीज को, उनको अलग खड़ा कर दिया, इट इसलिए इट इज कॉल्ड एज पनिशमेंट। तो जब आप बच्चे से कोई डियर चीज ले लेते हो, इट इज स्टिल अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एंड इट इज known that it works best with children. तो मारिए मत, but opt for different ways of punishment. The best way of punishment is taking something dear away from them. Next, now we come to the third part, managing of problem behaviors. तो जब हम बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करना चाहते हैं, तो इसमें आई विल टेल इट टू यू इन 3 steps दैट यू कैन डू। फर्स्ट स्टेप इज दैट यू आइडेंटिफाई द बिहेवियर एंड यू डिफाइन इट। जो मैं पहले भी आपको बता रही थी एनालाइज करने के टाइम पे, कि आपको उस बिहेवियर को डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly वो बिहेवियर है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि प्रिया स्टार्ट्स थ्रोइंग थिंग्स एंड रिजेक्ट्स फूड इफ वी डिसएग्री एंड हर डिमांड्स आर नॉट मेट इमीडिएटली। उसने कुछ भी चीज मांगी कि मुझे आज ये खिलौना चाहिए, या मुझे बाहर जाना है, या मुझे ये पर्टिकुलर चीज खाना है, और वो अगर डिलीवर नहीं हुआ तो वो बोलेगी कि मुझे स्कूल भी नहीं जाना, मुझे खाना भी नहीं खाना। तो ये एक बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन है कि ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब उसने कोई डिमांड रखी थी और वो समहाउ अभी पूरी नहीं हो सकती है, या वो वाजिब नहीं है, या इट इज नॉट अ सिचुएशन वेयर पेरेंट्स कैन एक्चुअली डिलीवर इट, तब वो सारे टैंट्रम्स दिखाने लग जाती है। और टैंट्रम्स क्या दिखाती है, वो प्रॉब्लम बिहेवियर्स क्या होते हैं कि वो खाना रिजेक्ट करती है, वो मिसबिहेव करती है, और वो चीजें फेंकने लग जाती है। ऑल ऑफ दीज आर लाइक प्रॉब्लम बिहेवियर्स। एंड नाउ दैट यू हैव डिफाइंड इट, गो टू द सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाइंग द रिवॉर्ड्स। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप रिवॉर्ड्स को? there are various forms of rewards that you will understand. जैसे प्राइमरी रिवॉर्ड्स होते हैं, कुछ चीज प्राइमरी रिवॉर्ड्स हमारी प्राइमरी नीड्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम सबको खाना, कुछ ना कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है, तो इट इज काउंटेड इन योर प्राइमरी नीड्स कि बच्चे को क्या चीज खानी बहुत अच्छी लगती है, क्या चीज खा के उसका मन खुश हो जाता है, या क्या चीज वो बहुत चाव से खाता है, बहुत इंटरेस्ट से खाता है, वो वेट करता है कि घर में कब ये बनेगा। सो इट इज लाइक अ प्राइमरी रिवॉर्ड। आइडेंटिफाई ऑल दोज थिंग्स दैट चाइल्ड लव्स टू ईट, लाइक लव्स टू कंज्यूम। उसके बाद आता है मटेरियल रिवॉर्ड। तो मटेरियल रिवॉर्ड में वो सारी चीजें हो सकती है जो मटेरियलिस्टिक है, एज इन कोई टॉय है, कोई डिवाइस है, कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई बॉटल है, या कोई खिलौना, एनीथिंग विच इज मटेरियलिस्टिक। कोई ब्लैंकेट है, कोई टेडी बियर है, कोई बॉल है जो उसे अच्छी लगती है। तो आइडेंटिफाई दैट थिंग कि ये चीज देने से वो बच्चा इमीडिएटली रिवॉर्डेड फील करता है। जैसे कुछ बच्चों का एक फेवरेट ब्लैंकेट होता है, कुछ बच्चों की एक फेवरेट टेडी, किटी, डियर, डॉग, कुछ तो भी होता है। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो मटेरियल रिवॉर्ड अगर उसे दे दो तो वो इमीडिएटली शांत हो जाते हैं। you identify that as a material reward. Then third is like social rewards. social rewards में वो सारी चीजें आती हैं जो
जैसे किसी बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो हम बोलते हैं कि शाबाश, गुड जॉब, ये बहुत अच्छा काम किया, हम तारीफ कर देते हैं। और न सिर्फ हम अपने फैमिली में तारीफ करते हैं, वी ऑल्सो अप्रिशिएट द किड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एल्स कि अब तो देखो स्नेहा बहुत बड़ी हो गई है और शी कैन गो आउट ऑन हर ओन, शी कैन परचेज थिंग्स ऑन हर ओन, वो अपनी चॉइसेस खुद करती है, वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद से अपना वो नहा लेती है, वो ड्रेसअप कर लेती है। तो यू व्हाट यू आर डूइंग इज आप उसे एक सोशल रिवॉर्ड दे रहे हो, आप उसे एक्सेप्टेंस दे रहे हो, आप उसे शाबाशी दे रहे हो, आप उसकी तारीफ कर रहे हो बहुत सारे लोगों के सामने। इट इज ट्रीटेड एज अ सोशल रिवॉर्ड। तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट वर्क्स विथ हर, वो किस चीज से उसे अच्छा लगता है, कौन सी ऐसी सोशल रिवॉर्ड है जो वो बहुत दिन तक याद रखती है या बहुत सारे दिन तक वो इन्फ्लुएंस्ड रहती है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से। Fourth type of reward that we can identify, we have discussed primary reward, material reward, and social reward. Then fourth type of reward can be some kind of activity that they find rewarding. जैसे कुछ बच्चों के कोई फेवरेट गेम्स होते हैं, कुछ बच्चों को अकेले खेलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को और दूसरे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, कोई बच्चे रहते हैं जिनको टीवी ही देखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को साइकिलिंग करना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को। तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चे के लिए बहुत डियर है, तो दैट कैन बी टेकन एज एन एक्टिविटी रिवॉर्ड। देन कम्स प्रिविलेज अवार्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रिविलेज। तो प्रिविलेजेस में एज द वर्ड सजेस्ट कि क्या प्रिविलेजेस आप दे रहे हो बच्चे को, जैसे स्कूल में क्या मॉनिटर बना दिया या अपनी जो स्पोर्ट्स टीम है उसका कैप्टन बना दिया, तो बच्चा बहुत रिवॉर्डेड फील करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो जाती है और वो कॉन्फिडेंट फील करता है। तो दीज कैन बी ट्रीटेड एज रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रिविलेजेस। लास्टली जो रिवॉर्ड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, टोकन। तो देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोकन्स। जैसे आपने किंडरगार्टन बच्चों के जो पेरेंट्स होंगे उन्होंने उनके आपने देखा होगा कि कई बार टीचर्स उनके हाथ पे ऐसे स्टार्स बना देती है, या हमें अपने कॉपी और नोट्स याद है जहाँ पे टीचर या हमारे ड्राइंग शीट्स या किसी टेस्ट में मैडम लिख के देती थी गुड, वेरी गुड, ओके, फेयर, एक्सीलेंट मिल जाता था तो दिल एकदम खुश हो जाता था। और बहुत सारे टाइम्स मैडम स्टार्स भी दे देती थी कि 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार। तो जब ये सारे रिमार्क्स आपको मिलते थे तो इट वर्कड एज टोकन्स फॉर यू, टोकन्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू। तो रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए टोकन्स कैन बी मनी। आप उनका पिग्गी बैंक का कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो और मे बी वो मनी सेव करना सीख सकते हैं, तो यू कैन रिवॉर्ड देम इन द फॉर्म ऑफ अ टोकन विच इज मनी, कि आपने अगर ये अच्छा बिहेवियर किया तो वी आर गोइंग टू रिवॉर्ड यू विथ 10 रुपीज और 5 रुपीज एंड सेव इट इन द बैंक, सो दैट अगली बार वो किसी चीज की, बैंक एज एन उनका जो पिग्गी बैंक होता है वो, तो नेक्स्ट टाइम जब उनकी कोई डिमांड रहेगी और नेक्स्ट टाइम वो कोई खिलौने की डिमांड करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो इनकरेज द कंसेप्ट ऑफ मनी इन देम कि आप कलेक्ट कर लो, आप अच्छा बिहेवियर करो, एंड वंस यू हैव ऑल द मनी फॉर बाइंग दैट पर्टिकुलर टॉय, तो फिर आप परचेज कर सकते हो। तो यू मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन बिहेवियर फॉर अर्निंग रिवॉर्ड्स फॉर देमसेल्व्स। ठीक। सो ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था वेर हम मैनेजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर्स में हमने आइडेंटिफाई किया, हमने डिफाइन किया कि बिहेवियर कैसा होता है। सेकेंडली हमने रिवॉर्ड्स आइडेंटिफाई किए इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी रिवॉर्ड्स, मटीरियल रिवॉर्ड्स, सोशल रिवॉर्ड्स, एक्टिविटी रिवॉर्ड्स, प्रिविलेज रिवॉर्ड्स एंड टोकन रिवॉर्ड्स। ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया। जो थर्ड स्टेज होती है बिहेवियरल मैनेजमेंट की, उसमें आप बार्गेन करना सीखते हो। जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल कि जब बच्चे नेगोशिएट करते हैं तो वो कैसे नेगोशिएट करते हैं। आप बैठे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, छोटा बच्चा है 10-12 साल का, वो आएगा, वो बोलेगा कि मम्मा मुझे ना दो वन वन और टू चॉकलेट खानी है। तो दे विल कम एंड दे विल ट्राई टू ग्रैब योर अटेंशन और वो बोलेंगे कि अच्छा दो दो चॉकलेट खानी है। और जब तक आप
अपना ध्यान शिफ्ट करोगे, उनकी तरफ अटेंशन पे करोगे, तब तक वो बोलेंगे अच्छा 3 खानी है, और जब तक आप रिस्पॉन्ड करोगे तब तक वो बोलेंगे 4 5 6 10 खानी है अब मुझे। तो व्हेन दैट हैपेंस, तो आपने जब तक रिस्पॉन्ड किया, आपने जब तक बार्गेन किया, बच्चे ने बार्गेन ही कर लिया, 1 से लेके 10 पे पहुंच गए वो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का फैक्टर आता है, जो हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। और आप कैसे बार्गेन कर सकते हो? आप बोल सकते हो कि नहीं देखो, आपने अगर आज खा ली ज्यादा तो कल आपको नहीं मिलेगी। एक दिन में रूल है कि आप 2 ही चॉकलेट खा सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं खा सकते हो। तो ये एक दिस इज वन ऑफ द वे टू बार्गेन। सेकेंड, जब आप बच्चे से बार्गेन करते हो टाइम को लेके, स्पेशली स्क्रीन टाइम का बहुत ज्यादा इशू रहता है बच्चों में, तो जब आप वो चीज बार्गेन करते हो, तो सपोज कि बच्चे ने बोला कि अच्छा मैं 2 मिनट्स और खेल लेता हूँ, तो आप बार्गेन कर लो कि नहीं 2 मिनट्स आप और नहीं खेल सकते, ऑलरेडी ओवर टाइम हो गया है, मेक इट 1 मिनट। तो वो बोलेंगे नहीं 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 2 मिनट्स, फिर वो और थोड़ा हायर साइड पे जाएंगे, नहीं 3 मिनट्स 4 मिनट्स। तो यू स्टिक टू योर, repeat it like a recording कि देखो either you can play it for 1 more minute, you can waste your time right now arguing with me or bargaining with me, एंड आपका वो 1 मिनट का टाइम वहीं पे ही लैप्स हो जाएगा। तो यू कैन मेक अ चॉइस कि आपको 1 मिनट और खेलना है, या अभी मुझसे बार्गेन करना है, एंड यू वांट टू लूज दैट टाइम। तो जब आप बार्गेन करते हो तो समवेयर किड्स किड्स आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स, जो छोटे बच्चे रहते हैं और जिनके प्रिविलेजेस आज भी आपके हाथ में रहते हैं, यू कैन एटलीस्ट टेल देम दैट यू आर द पेरेंट एंड यू होल्ड द अथॉरिटी समवेयर टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स। उनका ओपिनियन मैटर करता है, बट हर चीज जो वो मांग रहे हैं, या हर चॉइस जो वो चाहते हैं, हर विश जो वो मांग रहे हैं, वो वाजिब है, वो रेलेवेंट है, उनकी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये आप डिसाइड कर रहे हो अभी। एंड मे बी इन योर कॉन्वर्सेशन यू हैव टू कन्वे दैट टू देम। जो मैंने टोकन इकोनॉमी की बात की थी, तो सपोज कि आप एक बिहेवियर मैनेज कर रहे हो जिसमें स्क्रीन टाइम है, तो सपोज कि आपने डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें स्क्रीन टाइम होगा। कोई फ्री टाइम है, सपोज कि फॉर 10 और 15 मिनट स्क्रीन टाइम रहेगा, जिस टाइम वो भी उनका स्क्रीन टाइम कर सकते हैं, आप भी अपना स्क्रीन टाइम कर सकते हो। तो यू कैन मे बी मेक अ चार्ट ऑफ थिंग्स। बच्चों को मजा भी आता है चार्ट बनाने में। आप वो छोटे छोटे स्टिकर्स ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, सबके घरों में भी रहते हैं। स्टार्स रहते हैं, स्माइलीज रहते हैं, और इवन यू कैन ड्रॉ इट इफ यू कैंट बाय इट, और आपके पास नहीं है घर में इमीडिएटली अवेलेबल, आप एक चार्ट बनाओ जिसमें आप फॉलो कर रहे हो। तो जैसा स्कूल का टाइम टेबल चार्ट होता था कि ये सब्जेक्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक कौन से टाइम रहेगा, तो मे बी आपने जैसे ये लिया कि कितनी देर रहेगा स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम में आपने डिसाइड किया कि से 3:30 to 3:45 रहेगा, और अगर इसके बियॉन्ड हुआ तो स्टार मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपने डील कर ली। तो अगर बच्चे ने इमीडिएटली उसी टाइम पे उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने रख दिया उनका डिवाइस, तो मे बी यू कैन लेट देम अर्न अ स्टार और अ स्माइली, और उस चार्ट पे आप लगा दीजिए या बना दीजिए, एंड लेट देम नो कि अगर ये पूरे हफ्ते ऐसा रहा, तो एट द एंड ऑफ द वीक यू विल अर्न समथिंग गुड। और जो हमने पहले रिवॉर्ड्स डिस्कस किए थे, जो मटीरियलिस्टिक या प्राइमरी या इवन टोकन के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, जो भी हमने पहले रिवॉर्ड्स आइडेंटिफाई किए थे, वो रिवॉर्ड्स आप एक चंक में उनको दे सकते हो एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर एफर्ट्स जो उन्होंने पूरे हफ्ते किए हैं। एंड एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, और बच्चों के साथ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं अब तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत बार्गेन कर रहा है, तो थोड़ा ऊपर नीचे इट इज फाइन। द आइडिया इज टू बी कंसिस्टेंट, कीप ट्राइंग इट, तो वो बिहेवियर्स इनकलकेट होने लग जाते हैं, बिहेवियर्स मोल्ड होने लग जाते हैं, एंड आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। बिकॉज बिहेवियरल इश्यूज हैं, तो इट माइट टेक सम टाइम। अगर जो लर्नड बिहेवियर है उसे थोड़ा सा चेंज होने में टाइम लगता है, तो हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते,
3 महीने भी लग जाएं, इट इज पॉसिबल। इट रियली डिपेंड्स ऑन कि कितनी ज्यादा दिन की लर्निंग है, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, उस पर वो डिपेंड करता है। अच्छा, थिंग्स टू रिमेंबर, जब आप बिहेवियर चेंज करते हैं, जब आप बिहेवियर मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि जो भी लर्न्ड बिहेवियर्स होते हैं, जिनको बच्चों ने कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे सीखा है उनके लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में या किसी भी पर्सन से उन्होंने सीखा है, तो जो लर्न बिहेवियर्स रहता है वो बच्चे बहुत फियर्सली उसे गार्ड करते हैं। मतलब एक बार उन्होंने कोई चीज सीख ली, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे ये पेन है, तो मैं रोज इस पेन को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एफर्ट से खोल सकती हूँ, मुझे पता है, मेरे फिंगर को पता है कि इतना एफर्ट लगाया और ये पेन खुल जाता है। अब अगर किसी दिन मैं यहाँ आके वापस बैठती हूँ मेरे टेबल पे एंड आई आइडेंटिफाई कि ये पेन अब इतने एफर्ट से नहीं खुल रहा है, और मैं दोनों हाथ का इस्तेमाल करती हूँ वो तो भी नहीं खुल रहा है, तो क्या करूंगी मैं? और एफर्ट लगाऊंगी, और जोर से एफर्ट लगाऊंगी। हम सब यूजुअली यही करते हैं, कोई बॉटल का कैप हो, कोई दरवाजा हो, कोई चीज अटक जाती है तो हम और एफर्ट लगा के उसे खोलते हैं। तो जब हम ये कर रहे हैं, सेम बिहेवियर पे भी अप्लाई होता है कि बच्चे ने एक बिहेवियर लर्न कर लिया है, उसे पता है कि ऐसे रोने से, ऐसे मांगने से, इन लोगों के सामने मांगने से ये चीज मिल जाती है। तो उनके दिमाग में एक सेट पैटर्न है कि अम, जब फैमिली में कोई दूसरे लोग आते हैं या जब दादा दादी नाना नानी रहते हैं, तब मम्मा पापा इतना नहीं डांटते हैं और दे देते हैं आसानी से, ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, तो ये एक लर्न्ड बिहेवियर है। बट जिस दिन आपने बाकी लोगों के सामने भी उनके मन का डिलीवर नहीं किया, उस बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस सेम नहीं हुआ, उस दिन वो और ज्यादा टैंट्रम करेंगे, उस दिन वो बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि हमने तो चेंज करने की कोशिश की, मगर वो बढ़ जाएगा। तो जब बिहेवियर चेंज होता है तो अंडरस्टैंड इट लाइक अ ग्राफ, कि इनिशियली जब बिहेवियर ट्रिगर होता है तो सपोज कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, जब ट्रिगर हो गया उसके बाद में एजिटेशन लेवल पे वो जाता है, एक्सिलरेट होता है, जहाँ पे बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ अब मुझे एक पर्टिकुलर चीज चाहिए है, और अभी मेरे इस बिहेवियर से करने से मम्मी पापा मान जाएंगे और वो मुझे दे देंगे। और फिर वो पीक करता है एक जगह पे आके, जहाँ पे उसका पेशेंस लेवल एकदम खत्म हो जाता है और वो एकदम मिसबिहेव करने के में आ जाता है, और वो आर्ग्यू करता है, डिमांड करता है, रोता है, चीजें बहुत स्ट्रांगली इंसिस्ट करता है कि मुझे खाना भी नहीं खाना है, मुझे स्कूल भी नहीं जाना है, मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है, मुझे यहाँ भी नहीं बैठना है, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, और आप मुझे ये करके दो, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। व्हेन दे गेट स्टबर्न लाइक दिस, तो उसका एक पीक आता है। और अगर पेरेंट कोई बिहेवियर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पीक थोड़ा और हाई चला जाता है, क्योंकि बच्चा उसका लर्न बिहेवियर गार्ड कर रहा है, उसे पता है कि आज तक ऐसा करने से मेरी चीजें हो रही थी, मुझे चीजें मिल रही थी, बट आज जब मैं यही चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो वो और ताकत लगाता है और कोशिश करता है कि और वो पीक कर सके उस चीज को। बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब उसे ये समझ में आता है कि ये कॉन्सिक्वेंस जो इसके हैं वो पहले जैसे नहीं है, एंड हाउ सो एवर हार्ड आई ट्राई, व्हाटसोएवर आई ट्राई, कोई नई चीज में मैंने उसमें इंट्रोड्यूस कर दी, मैंने एक नया टैंट्रम उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने अलग तरीके से अनॉय मैंने किया या इरिटेट मैं हुआ, मैंने कोई अलग बिहेवियर डिस्प्ले किया, डिस्पाइट दैट इसका कॉन्सिक्वेंस वैसा नहीं हुआ जैसा पहले था। पिछली बार मुझे थोड़ा गुस्सा करके, थोड़ा चिड़चिड़ करके चॉकलेट मिल गई थी, इस बार मुझे चॉकलेट नहीं मिली, तो विथ टाइम वो जो पीक हुआ है बिहेवियर, वो विथ टाइम वापस नीचे आने लग जाएगा। बट अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी उस बिहेवियर में, किसी दिन आपने दे दिया, किसी दिन आपने नहीं दिया, किसी दिन आपने उसकी बात मान ली, किसी दिन आपने नहीं मानी, देन इट इज गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट। बच्चे की एक्सपेक्टेशंस उस पर डिपेंड करते हैं कि एक दिन काम नहीं किया तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो काम करेगा, तो मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ऐसे ही करने से मिलती हैं चीजें, ऐसे ही बिहेवियर से मुझे इन फ्यूचर भी सक्सेस मिल सकता है, तो लेट मी कीप ट्राइंग इट सम और द अदर डे। पेरेंट्स
बार्गेन करके मुझे जो चीज़ चाहिए वो दे देंगे। एक और बैरियर जो आपको देखने को मिलेगा जब कोई बिहेवियर आप चेंज कर रहे होंगे कि फैमिली में अगर एक कंसेंसस नहीं है, एक मत नहीं है फैमिली में, जैसे किसी चीज के लिए मम्मी ने मना किया, फिर पापा ने वो चीज दे दी, या मम्मी पापा ने मना किया और दादा दादी में से किसी ने वो चीज दे दी। किसी ने बोला, मम्मी ने बोला मैगी नहीं खाना है, रोज मैगी नहीं खा सकते, और दादा ने बोला नहीं मैं देता हूँ 30 रुपीज 40 रुपीज, आप जाके ले हो, अपन बनाएंगे अपन खाएंगे। तो उसका गोल सेट हो जाता है बच्चे को, वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि इनसे इनसे बात नहीं बनेगी, इनके पास जाओ तो बात बन जाएगी। तो अगर आपके फैमिली में कंसेंसस नहीं है सारे मेंबर्स में जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फिर आप जो बिहेवियरल मैनेजमेंट करना चाहते हो वो काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि जब आप कोई बिहेवियर मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, आप वो वेल डिफाइंड हो, उसके रिवॉर्ड्स डिफाइंड हो, घर में कंसेंसस हो, कंसिस्टेंट हो आपका एफर्ट। आप हर बार उसके पीछे जो वो बिहेवियर हो रहा है उसके पीछे आप हर बार एक ही कॉन्सिक्वेंस बच्चे को दिखाओ, तो उसे समझ में आता है कि ये बिहेवियर करने से ऐसा होता है, ये बिहेवियर करने से ऐसा होता है, तो अगली बार ये बिहेवियर करना है या नहीं करना है बच्चा डिसाइड कर पाता है। और अगर आप अपने आप को सीरियसली लेते हो कि मैं अब ये एज अ मदर, एज अ पेरेंट, एज अ फादर, अगर आप डिटरमिन्ड हो कि आई नीड टू चेंज दिस, तो आपको कंसिस्टेंसी बरतनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इन योर बिहेवियर्स। कई बार शायद आपका मन उदास हो, आपका दिल दुखे कि हम बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, हम बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम बिहेवियर है और फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, तो टेक एक्शन टुडे, और मे बी विथ टाइम वो डिफिकल्टी लेवल आएगा, उसका बिहेवियर, बैड बिहेवियर, प्रॉब्लम बिहेवियर भी बहुत पीक करेगा, बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि जब बच्चे को ये रियलाइज हो जाएगा कि अब जो पहले का लर्न बिहेवियर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस वैसे नहीं है जैसे वो चाहता था, तो उसके बिहेवियर में भी धीरे धीरे चेंज आने लग जाएंगे। एंड इट इज अ प्रोसेस, like I said it yesterday, it is a process. So keep calm, keep trying, keep yourself flexible, and things will take turn for good. This is about behavioral management. Last चीज जो I have promised about screen time, वो मैं डिस्कस करती हूँ। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि कितना स्क्रीन टाइम इनफ है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। आइडियलिस्टिकली देखा जाए तो 5 इयर्स से पहले आपको बच्चे को स्क्रीन दिखानी ही नहीं है इन एनी फॉर्म। हम सब आजकल अपना मोबाइल लेके ऐसे बैठे रहते हैं, तो बच्चों को भी यही लगता है कि ये मोबाइल कुछ स्पेशल पिटारा है, और वो आपका बिहेवियर इमिटेट करता है। जैसे वो आपके बोलने का तरीका इमिटेट करता है, जैसे वो आपके कंघी करने का स्टाइल इमिटेट करता है या शेविंग करने का स्टाइल इमिटेट करता है, बिल्कुल वैसे ही वो आपका ये बिहेवियर भी इमिटेट करता है। तो फर्स्ट आपको अपने बिहेवियर में भी थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा कमिटेड वर्क है और कौन सा कमिटेड वर्क नहीं है। अगर किसी का ऑफिस वर्क है, किसी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो बच्चे को वो डिस्क्रिमिनेट करना सिखाइए कि नहीं, ये ऑफिस वर्क वाला टाइम है, दिस इज नॉट फन टाइम, दिस इज नॉट स्क्रीन टाइम, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द स्क्रीन टाइम जो फन टाइम है, दिस इज फॉर वर्क, आई एम नॉट एंजॉइंग इट, इट इज समथिंग जो मुझे करना है बिकॉज इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हाउ मच टाइम इज टू मच, जब हम ये बात करते हैं, जैसे बच्चे गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं या उन्हें आजकल प्रोफेशनल गेमिंग का भी कंसेप्ट है, तो जो टीनेजर बच्चे रहते हैं कई बार वो बहुत सारा टाइम स्क्रीन पे बिता रहे हैं, और हमारे पास आज ऑप्शंस भी बहुत कम है। हम सब अपने घर में हैं बिकॉज द इट इज़ द नीड ऑफ आर कि हम घर में रहें, सेफ रहें। तो हाउ मच टाइम इज़ टू मच? तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद आपको ये पूछना चाहिए अपने आप से कि आप क्या रिस्क पे डाल रहे हो। टाइम से आप मत कंपेयर करिए उसे,
क्योंकि इट इज़ समवेयर हम सबका, इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, इट इज़ नेचुरल जो हम सब कर रहे हैं, टाइम स्क्रीन पे हम बिता रहे हैं। बट आप ये आइडेंटिफाई करो कि व्हाट इज़ एट रिस्क। आप जब स्क्रीन टाइम ले रहे हो या बच्चा जब स्क्रीन टाइम कर रहा है, तो is it interfering with their roles and responsibilities? Is it interfering with your roles and responsibilities? क्या आप घर का काम, आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, आपके फैमिली कमिटमेंट्स, आपके रिलेशनशिप कमिटमेंट्स, इन सब में क्या इंटरफेरेंस हो रहा है उस स्क्रीन टाइम की वजह से? क्या स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि बच्चे अपना जो प्रेशियस टाइम है जो वो खेलने में, फिजिकल एक्टिविटी में डाल सकते थे या किसी क्रिएटिविटी में डाल सकते थे, या खाना खाने के टाइम पे फैमिली क्वालिटी टाइम पे डाल सकते थे, और वो स्क्रीन टाइम में वेस्ट कर रहे हैं, तो देन इट इज समथिंग विच इज ऑफ कंसर्न कि दिस इज देन गेटिंग टू मच। आवर्स एंड आवर्स आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, इट इज डेफिनेटली टू मच, बट आप क्या रिस्क पे रख रहे हो, that also counts. Then look out for the compulsive behaviors as in जैसे मोबाइल से हम अलग ही नहीं रह पा रहे हैं, रात में नींद आ रही है, आंखों में भारीपन हो रहा है, उबासियां आ रही हैं, बट स्टिल यू कांट गिव अवे योर स्क्रीन। आप अपने से मोबाइल दूर ही नहीं रख पा रहे हैं, आपको लग रहा है और स्क्रॉल कर लें और वीडियो देख लें। बच्चे भी ऐसा करने लगे हैं आपको देख के, उन्हें लगता है ये न्यू नॉर्मल है। और आपको नींद आ रही है तो भी आप नहीं कर पा रहे हो। टेक्सटिंग एंड ड्राइविंग आप मिक्स कर रहे हो, अगर आप ये कर रहे हो और आप चाह के भी उससे अलग नहीं रह पा रहे हो, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम स्क्रीन टाइम की। स्क्रीन जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि ये एडिक्शन तो नहीं है, ये इंटरनेट एडिक्शन तो नहीं है। तो इंटरनेट एडिक्शन के लिए बहुत ब्रीफली मैं आपको ये बताऊंगी कि देर आर वेरियस पैरामीटर्स जो आप देख सकते हो, वेरियस डोमेन्स जो आप देख सकते हो, जैसे गेमिंग है, सोशल नेटवर्किंग है, ईमेल, ब्लॉगिंग, शॉपिंग ऑनलाइन, या inappropriate internet pornography. All of these things can be included in internet addiction, provided you are putting everything of your roles and responsibilities at risk. आप उसी में involved हो और आप और कोई चीज consider नहीं कर रहे हो। Then check for the behaviors like how many times you check your smartphone. बच्चे को आप टाइमलाइन में बांध सकते हो। आप अभी वो छोटा है, वो शायद जिद करे, मगर वो आपकी बात मान जाएगा। बट अगर आप एक रोल मॉडल हो और आप बच्चे को सिखाना चाहते हो, तो मे बी यू नीड टू check your behavior, identify and manage your behavior before you start managing their behavior. तो पहले आप खुद को चेक करो कि एज अ पेरेंट कि मैं कितने बार अपना फोन उठा के देखता हूँ, मैं कितने बार अननेसेसरीली विदाउट पिंग्स, जब वो अर्जेंट नहीं भी होता है, इम्पॉर्टेंट नहीं भी होता है, बट सिर्फ एक घंटी बजी और सुबह उठ के भी हमें लग रहा है कि हमें फोन पे सबके गुड मॉर्निंग को रिप्लाई करना चाहिए, तो मे बी समवेयर वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट कि दिस कैन डेवलप इनटू प्रॉब्लम बिहेवियर्स इन योर किड्स केस। और ये भी आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या आप अपने बच्चों को काम डाउन करने के लिए, उनके इमोशनल मैनेजमेंट के लिए, जस्ट बिकॉज वो रो रहे हैं या वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं इसलिए आप उन्हें इंटरनेट पकड़ा रहे हैं, तो इट कैन बिकम अ पोटेंशियल प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि फिर उन्हें इमोशनल मैनेजमेंट करना नहीं आएगा, उन्हें अपने आप को खुद से काम डाउन करना नहीं आएगा। और हमारा आज का ये क्लिया है, एक व्हाट टू से बहुत ही सैड पार्ट है ये कि हम बोर होना भूल गए हैं। हमने हर अपने बोर्डम वाले टाइम को टेक्नोलॉजी से फिल अप करने की कोशिश की है। तो जब हम ये करते हैं तो वी आर ऑलवेज इंगेज्ड, और हम अपने आप को काम डाउन और अपना इमोशनल रेगुलेशन नहीं कर पाते हैं, विच इज अगेन अ मिस्टेक दैट वी मेक। तो बोर होना भी एक आर्ट है, तो टीचर किड की इट इज ओके टू गेट बोर्ड, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द टाइम यू हैव टू बी ऑनलाइन समवेयर, यू हैव टू बी इंगेज्ड विद अ डिवाइस समवेयर। अच्छा, हाउ टू मैनेज में ये चीज है कि बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ यू, आई चैलेंज ऑल माई व्यूअर्स, एवरी वन हु इज currently online watching me, and
people who will be online later and watching this video, I invite you, I challenge you for this कि आप एक डिजिटल डाइट पे जाके देखो। जैसे हम फास्टिंग करते हैं कि किसी दिन हमने उपवास रखा है, हम किसी दिन 16 घंटे का उपवास करते हैं, या हम डाइट पे जाते हैं जिसमें हम 12 घंटे नहीं खा रहे हैं, या हमने सुबह 9 बजे खाया और फिर दिन में 2 ही बार हम डाइट ले रहे हैं। तो जैसे आप फूड के साथ करते हैं, ऐसे आप स्क्रीन टाइम के साथ कर सकते हो कि मे बी यू कैन डिसाइड कि हर दिन 9 बजे से पहले आई एम नॉट गोइंग टू टच माई फोन, बिकॉज 9 बजे के पहले आप अपना आवर ऑफ पावर बना सकते हो। आप अपने बच्चे को भी वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, यू कैन बी अ रोल मॉडल। टेल देम कि इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है कि मुझे हर बार 9 बजे से पहले फोन उठाना पड़े। इफ यू कैन एक्सटेंड इट टू 11 o'clock, बिकॉज जो ऑफिशियल टाइमिंग होता है वो 11 बजे से स्टार्ट होता है, एंड पीपल, nobody is going to reach out to you before 11। लोग उससे पहले मेल चेक भी नहीं करते या किसी को इतना अर्जेंटली कॉल भी नहीं करते until and unless वो कोई लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है। तो आई गेस यू शुड नॉट बी, इट माइट अपीयर अर्जेंट टू यू बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इमीजिएटली। तो ट्राई टू फिक्स अ टाइमिंग कि 7 बजे या 11 बजे तक मैं अपने फोन को नहीं हाथ लगाऊंगा। या यू कैन गो ऑन अ डाइट वेयर आपके डिनर के बाद आप अपने फोन को हाथ नहीं लगाते हो। ऐसा आज के ज़माने में शायद पॉसिबल है या नहीं, आई डोंट नो, बट इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिनन दीज डेज कि uh, हम फ़ोन के साथ उठते हैं और फ़ोन के साथ सोते हैं। तो मे बी यू नीड टू चेंज दैट समवेयर। अगर आप डिजिटल डाइट करते हो तो मेक अ कमिटमेंट, मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि ठीक है, खाना खाने के बाद वैसे भी 1 आध घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद सोने का टाइम होता है, तो मे बी आई विल यूटिलाइज दिस टाइम टू ऑर्गेनाइज माई डे, थिंक अबाउट माई डे, रिफ्लेक्ट अबाउट माई डे, और अगले दिन की तैयारी के लिए मे बी आई विल स्पेंड दैट डे। वैसा आप कर सकते हैं। या अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो मेक श्योर कि सोने के आधे घंटे पहले आप अपना फ़ोन अपने बेड से दूर कहीं चार्जिंग पे लगा दीजिए, और उसके पास मत जाइए, उसको स्क्रीन टाइम में मत बदलिए, क्योंकि आपका माइंड सोना चाहता है उस टाइम पे। तो आप स्लीप हाइजीन भी फॉलो कर पाएंगे ऐसे अगर आप डिजिटल डाइट फॉलो करेंगे तो। देन कम्स डिजिटल न्यूट्रिशन, वो आप फॉलो कर सकते हो। डिजिटल न्यूट्रिशन इज लाइक, जैसे हम अपने एक बैलेंस डाइट में हम अपने न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन हो। बिल्कुल वैसे ही आप ऑनलाइन क्या चीज़ स्क्रॉल कर रहे हो, किस चीज़ पे आप क्लिक करते हो, वो आपके कितने काम की चीज़ है या वो आपका टाइम वेस्ट कर रही है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वो डिजिटल न्यूट्रिशन आप अपने आंखों को, अपने दिमाग को क्या चीज़ दे रहे हो। और एट द सेम टाइम आपका डिवाइस जो है वो बहुत सारी कुकीज़ एब्जॉर्ब करता है आपके इंटरनेट से, और अकॉर्डिंगली डेटा जो कुकीज़ के थ्रू जाता है उसमें आपके सामने कौन से एड्स आएंगे वो निर्धारित होता है, वो चूज होता है। तो एवरीबडी, एवरी ऐप दैट यू आर यूजिंग इज एक्चुअली यूटिलाइजिंग दैट डाटा टू प्रेजेंट टू यू कि क्या आप देख रहे हो, और वो आपको रिमाइंडर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर वेकेशन पे जा रहे हैं और आपने देखा कि होटल्स बुक करने के लिए देखा, तो शायद अगले 1 हफ्ते 10 दिन आपको सिर्फ होटल्स होटल्स के ही ऐड दिखेंगे। या आपने ड्रेसेस अगर देखी हैं, कोई पर्टिकुलर डिवाइस देखा है, तो आपको उसी के एड्स दिखेंगे आपके स्क्रीन पे सब जगह। तो बी वेरी माइंडफुल कि आप किस चीज का डिजिटल न्यूट्रिशन दे रहे हो। सेम गोज विथ योर किड्स, व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग इट यू कैन टीच इट टू योर किड्स कि क्या चीज देखने से टाइम वेस्ट हो रहा है और क्या चीज करने से हमारा टाइम एक्चुअली में यूटिलाइज हो रहा है, एंड यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम। फाइनली डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स इज लाइक, जैसे आप अपने डाइट से डिटॉक्स करते हैं, आप कुछ ऐसा लेते हैं जो आपका सिस्टम क्लीन कर सके और आप रेगुलर फूड से थोड़े टाइम के लिए दूर चले जाते हैं। तो डिजिटल डाइट का लॉन्गर फॉर्म इज डिजिटल डिटॉक्स, कि जहां आप डिजिटल डाइट में एक दिन में एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि इस टाइम पे हम डिवाइस नहीं यूज करेंगे, या इस टाइम पे हम टेक्नोलॉजी को नहीं अवेल करेंगे। बिल्कुल वैसे आप डिजिटल डिटॉक्स करके देखो कि एक पूरा संडे आपने डेडिकेट कर दिया कि मे बी आई एम नॉट गोइंग टू यूज माई डिवाइस टूडे, यू कैन पुट अप योर स्टेटस अकॉर्डिंगली, and I guess it is going to work all fine with you. So this is it for today. I believe मैंने कुछ आपके queries answer कर चुकी हूँ मैं already. um, Let me see if there are any.
questions. Uh, all right. So, how much screen time is okay for a 7-year-old? श्वेता नांग मैम की क्वेश्चन है ये. मैम 7 years old के लिए आप मतलब यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर किड्स जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं 5 years तक तो आप स्क्रीन टाइम अवॉइड करो. टिल 7 आई गेस हाफ एन आवर से एक टाइम पे हाफ एन आवर से ज्यादा आपको स्क्रीन नहीं देना है बच्चे को. 30 मिनट्स का आप टाइमलाइन डिसाइड कर लो कि 30 मिनट से ज्यादा आप नहीं दोगे. बट प्रोवाइडेड हमारा आज का सिनेरियो ऐसा है कि क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं और टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. मैं अभी ऑनलाइन हूँ, आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और हम पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं. तो ये हमारी नीड है, करंट नीड है, एंड वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट. तो आप वो दोनों चीजें सेपरेट करके देखिए कि एक है कमिटमेंट कॉल है कि जो टीचर्स के साथ में आपको अटेंड करना है तो वो कमिटेड कॉल है. सो लेट्स नॉट कॉल इट एन एंटरटेनमेंट टाइम. उसके अलावा अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो कट डाउन इट टू 15 मिनट्स 20 मिनट्स. उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम आप मत दीजिए. जो कमिटेड कॉल्स हैं दैट इज फाइन. अगर हम उसे अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो अनअवॉइडेबल है, वही तरीका है आज हमारे पास, तो इट इज अनअवॉइडेबल राइट नाउ. उतना आप कमिटेडली दे दीजिए. उसके अलावा जो बाकी टाइम है उसे आप स्क्रीन टाइम में कन्वर्ट मत होने दीजिए. सो से लाइक 20 मिनट्स आप एक टाइमलाइन रखो. हो सकता है बच्चा उसे ब्रीच करे उस टाइमलाइन को. आप उससे बार्गेन कर सकते हो. वो बोलेगा कि नहीं मम्मा 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर. हाफ एन आवर से थोड़ा आगे बढ़ेगा तो दे विल से कि अच्छा अभी देखो 6 पे आपने बोला कि 6 पे कांटा आ गया है, अभी हटना है. तो मे बी यू कैन टेल कि जस्ट 2 मिनट्स मोर, या अब 7 पे काटा आएगा तो देर इज नो फर्दर बार्गेनिंग और आपको देना पड़ेगा. एंड यू हैव द लिबर्टी हियर बिकॉज यू आर अ पेरेंट राइट नाउ. आप वो ले सकते हो. आज आपके हक में है. आज आप वो कर सकते हो. आप वो चेंज कर सकते हो तो डू इट टुडे. बाद में वो अपने दिमाग से ही करने वाले हैं चीजें. तो इट इज रियली अप टू अस राइट नाउ कि हम कोई चीज कैसे डिलीवर करते हैं. ओके. All right. So I guess there are no more questions here today. As of now, I can see only these. Thank you so much for joining me today, and thank you so much. Mayank sir has written something. Let me. Okay. So I am apologizing on the behalf of this young Indian Bhopal chapter today that we have been late today and some of the viewers have already left, but I believe ki this session is going to be online and you can always suggest it to those who request it. So I just want to thank everyone who was online here to encourage me, and thank you all the YI team. Thank you Mayank sir, thank you Prashant sir, thank you Ashish sir for making it possible, all this possible. And despite the technical glitch, thank you for keeping the patience with me. I believe मैंने आपको कहीं ना कहीं एक insight दिया how to manage your kids behavior. And let me sign off for today. Stay safe. Thank you so much. I'm signing off.